Hi, this is Amitabh Kumar. I am from People Bridge. I represent People Bridge, and we are the co-host along with Deepak ji for this session. And Deepak ji, I am known for quite some time. He is a wonderful person and a very knowledgeable person in his field of Vastu. By qualification, he is a civil engineer, but his true calling was in doing something beyond, constructing buildings and all. So he took a Vastu as a what was his passion and made it his profession also. He brings in an amazing knowledge of almost 20 years in this field and has worked with over 3,000 clients in solving different problems, solving their problems. So when we look at the present scenario, while we all look at, rational explanation of what has happened, what has not happened, but it's quite unprecedented in its approach, and no amount of, analysis or whatever we could have called it could have predicted this kind of a situation. So if we go back to the research reports which were coming out in December, none of them would have mentioned a scenario like this. But unfortunately, it is upon us, and we always wonder, why this has happened, and what could have been done to avoid this. So this is not a debate for this, but whenever these kind of things happen, we always wonder that there is something which is more to this world than rational, logical, or mathematical expression. So Vastu has been an ancient science which has originated from India, and so Deepak ji has been a practitioner for it. And without taking too much of time from him, I will hand over to Deepak ji. I have one request from all the participants just to make this session, truly interactive and truly great. Kindly switch off your video and audio so that there is no disturbance during the session, and Deepak ji can have uninterrupted session, because the problem with the video is that we are all at this point in time the whole world seems to be on internet, so video always consumes a lot more bandwidth than audio. So please switch off your video, and whatever questions are there we will continue to ask, and you can just type it in the chat box, and at the end of the session we will try to answer whatever questions you may have. So thank you all once again for joining us then from the behalf of Team People Bridge and myself, Amitabh Kumar, and I invite Mr. Deepak ji to continue with this, to start with this presentation. Thank you so much, sir. Thank you, Amitabh ji. Welcome once again. Thank you, Amitabh ji, for nice introduction. And I would like to thank all of you who are present online for this seminar. जैसा कि हम सभी जानते हैं, कोरोना की वजह से ये समय बहुत टफ है, और इस टफ समय में मैं उम्मीद करता हूं कि आप और आपका परिवार सेफ और स्वस्थ होगा। कुदरत ने देखिए जो करना है वो अपने हिसाब से करेगी। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो ये जो हमें समय मिला है, ये एक गोल्डन पीरियड है, इसका हमें सही और पूरा बेनिफिट लेना चाहिए। तो आज का हमारा सेशन है वास्तु के ऊपर, कि इस समय के दौरान और इसके बाद भी हम ऐसा क्या करें कि जिससे हम और हमारा परिवार, उनका लाइफ जो है आसान हो जाए, इजी हो जाए। तो आज मैं कुछ टॉप इसके सीक्रेट्स और कुछ ऐसी रेमेडीज़ बताऊंगा जो इस कुछ रेमेडीज़ आप इस पीरियड के दौरान कर पाएंगे और कुछ लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद कर पाएंगे। तो मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपके पास नोट पैड और पेन है तो कोई इम्पोर्टेंट टॉपिक और पॉइंट्स जो आप नोट करना चाहें तो वो कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज के सेशन में मैं कवर करूंगा वास्तु क्या है, टॉप 20 वास्तु सीक्रेट्स, और कौन कौन सी 16 डायरेक्शंस होती हैं और उनकी इम्पोर्टेंस क्या है 16 डायरेक्शंस की, और पूरी दिशाओं के अंदर टॉयलेट 16 दिशाओं के अंदर उनका क्या नेगेटिव इम्पैक्ट है और कहाँ कहाँ टॉयलेट आइडियल जोन के अंदर होनी चाहिए, और उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर ले लेंगे, और ये पूरा सेशन 1 घंटे का रहेगा। Deepak ji, one more thing, just before you start, so I think there are some new participants, so I will again request them to switch off their microphone and switch off their video. Yeah.
थैंक यू सर। Okay, welcome. तो बात करते हैं वास्तु। वास्तु क्या है? वास्तु का मतलब है वास करने योग्य स्थान। तो वास करने योग्य स्थान कैसा होना चाहिए? वो पॉजिटिव एनर्जी वहां पर होनी चाहिए और वहां पर रहने वाले सुख शांति समृद्धि प्राप्त कर सकें। तो संस्कृत के अंदर इसका टर्म जो है वो है वास निवासे। वही है कि कैसी हमारी जगह होनी चाहिए। तो उसके लिए मैं आगे आपको बताऊंगा कि कौन से ऐसे हम काम करें कि हमारे घर के अंदर पॉजिटिव एनर्जी मिले और हम सब उसका स्वस्थ रह सकें, उससे हेल्थ वेल्थ और प्रॉस्पेरिटी प्राप्त कर सकें। तो हमें सबसे पहले वास्तु के अंदर डायरेक्शंस की बात आती है। तो डायरेक्शंस कैसे चेक करनी है? तो सिंपल वे में डायरेक्शन चेक करने के दो तरीके हैं। एक तो आप मैग्नेटिक कंपास से चेक कर सकते हैं और दूसरा आपके पास आईफोन है तो उसके अंदर भी ऐप है बाय डिफॉल्ट, तो उसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो मैग्नेटिक कंपास से भी आप घर के अंदर खड़े होके, घर के सेंटर के अंदर खड़े होके आपको ये आइडिया लग जाएगा एटलीस्ट कि मेरे घर का नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट कहाँ पर है। और आप कैसे भी इसको यूज़ कर सकते हैं, उनमें से एक यूज़ कर सकते हैं। और जब पकड़ इसका डायल जो है टिल्ट ना हो जाए और वो अटक ना जाए, तो आपको सही डायरेक्शन फिर मिल नहीं पाएगी अगर वो अटक जाता है। तो सीधा पकड़ना है, चाहे मोबाइल है चाहे वो मैग्नेटिक कंपास है, तो वो सीधा पकड़ेंगे, घर के सेंटर, घर के अंदर या ऑफिस के अंदर सेंटर में खड़े हो जाएंगे तो आपको नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट का आइडिया हो जाएगा ये दिशाएं कहाँ कहाँ पर। वास्तु से फायदा क्या है? वास्तु से आपको एक इंटरनल पीस प्राप्त होता है, एक शांति प्राप्त होती है और हमारे हेल्थ वेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी लेने के लिए ये हेल्प करता है ये टूल। तो अभी मैं आपको 20 ऐसे सीक्रेट्स बताऊंगा जिससे आपके परिवार में ये सुख शांति समृद्धि प्राप्त हो पाएगी आपको। तो पहला सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट ये है कि आज की डेट में वास्तु के अंदर बहुत बड़ी समस्या है कि नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट है तो उसका क्या करें। क्योंकि फ्लैट्स के अंदर एक टॉयलेट को हटाना बहुत मुश्किल काम है, या उसके अंदर आज तक जो भी हम रेमेडीज करते रहे, पिरामिड रख लिया, नमक रख लिया, पेंट्स कर लिया, उससे बहुत ज़्यादा लाभ नहीं हुआ। लेकिन मैं एक आज आपको ये परमानेंट सोल्यूशन देने जा रहा हूँ। हमारे पास ये नॉर्थ ईस्ट टॉयलेट के लिए स्टड्स हैं, ये मैं दिखाना चाहूँगा आपको। ये स्टड हैं, राइट। ये नॉर्थ ईस्ट टॉयलेट के लिए है ये वाला स्टड, और ये स्टड एसएस का बना हुआ, इसके अंदर क्रिस्टल हैं और एसेंशियल ऑयल्स हैं। तो ये वाले स्टड को आप टॉयलेट के अंदर फर्श पे एम्बेडेड कर सकते हैं, और इसके साथ एक और लगाना पड़ेगा नॉर्थ ईस्ट का डायरेक्शन का ये स्टड। ये जस्ट टॉयलेट के बाहर नॉर्थ ईस्ट एरिया में ही लगा दीजिए। तो अंदर वाला स्टड जो है ये वहाँ का नेगेटिव एनर्जी को डाउन करेगा और ये नॉर्थ ईस्ट के एनर्जी लेवल को बढ़ा के रखेगा, तो वो आपका एरिया बैलेंस हो जाएगा। तो ये एक परमानेंट सोल्यूशन है। इससे आप उसका नॉर्थ ईस्ट का पूरा इम्पैक्ट जो है खत्म कर सकते हैं विदाउट एनी रेनोवेशन, विदाउट एनी डेमोलिशन। तो आपको अपनी WC हटाने की जरूरत नहीं है, इस पे मैं बहुत सारा काम करके देख चुका हूँ। नेक्स्ट है बैडिबल आई। बहुत सारे लोग कहते हैं कि मेरे ऑफिस को नज़र लगी है, मेरे घर को नज़र लगी है, तो उसका क्या हल है। ये एक मॉडर्न बैडिबल आई है, इसको नज़र बट्टू भी बोलते हैं। तो ये नज़र बट्टू आप बैडिबल आई अपने ऑफिस के या घर के जस्ट बाहर, यहाँ एंट्रेंस है बाहर की तरफ, अंदर की तरफ नहीं बाहर की तरफ, वहाँ उसको हैंग कीजिए, ताकि जो सामने वाला कोई भी आ रहा है तो पहले इस पे निगाह डालेगा और उसके बाद घर के अंदर आएगा। तो ये काफ़ी बेनिफिशियल चीज़ है, मॉडर्न लुक है, इसको आप यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट है गोल्डन मनी प्लांट। पैसे का, मनी का सबको ज़्यादातर क्राइसिस रहता है, इसको इम्प्रूव करने के लिए और बिजनेस में अपॉर्चुनिटीज़ और लाने के लिए एक सिंपल सा ये प्रोसेस है, सिंपल सी रेमेडी है। आपने क्या करना, एक मनी प्लांट होता है, एक ये गोल्डन मनी प्लांट होता है। गोल्डन मनी प्लांट में जो प्लांट्स के ये पत्ते हैं ये थोड़े से गोल्डन शेड में होते हैं, और इसको आप एग्जैक्ट नॉर्थ डायरेक्शन में रख लीजिए। जैसा कि मैंने पहले बताया कि नॉर्थ आपको पता चल जाएगा, घर के सेंटर में खड़े हो गए, मैग्नेटिक कंपास से आप पता कर पाएंगे। और इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, मनी प्लांट रख लेते हैं, लेकिन उसका जो प्लांटर है, गमला है,
वो लाल रंग का हो जाता है या कोई दूसरे कलर का हो जाता है। तो मैं आपको यहाँ पर सबको बताना चाहूँगा कि जो आपने गमला लेना है वो भी ग्रीन कलर का हो या वाइट ऑफ वाइट कलर का हो, रेड कलर से रिलेटेड बिल्कुल ना हो, अदरवाइज इसका इम्पैक्ट आपको पूरा पूरा नहीं मिलेगा, क्योंकि ये नॉर्थ जो है वाटर एलिमेंट है और रेड कलर जो फायर एलिमेंट है। तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे। तो इससे क्या होगा, आपको बिजनेस में अपॉर्चुनिटीज और पैसा आने में हेल्प करेगा। ये है, कभी भी आप अपने घर में, ये मैं जितना भी आपको बता रहा हूँ मैं अपने 20-22 साल के एक्सपीरियंस के ब्याह पे बता रहा हूँ। ये जो मैंने देखता हूँ साइट्स के अंदर, घर लोगों के अंदर, ऑफिस के अंदर, ये बहुत महंगे महंगे स्कल्स लेकर आ जाते हैं और वो स्कल्स रखने के बाद उनको वहाँ पर फील होता है कि कुछ नेगेटिव एनर्जी है, डिप्रेशन टाइप फील होता है, इरिटेशन स्टार्ट होती है। तो रिसेंटली मैं अभी एक क्लाइंट के वहाँ विजिट किया था, तो उनके वहाँ पर ये 2-3 स्कल्स रखे हुए थे। वो कहते हैं जब भी हम ड्राइंग रूम में बैठते हैं तो वहाँ पर हमारी इरिटेशन स्टार्ट हो जाती है, वो जो नॉर्मल डिस्कशन है वो बहस में बदल जाती है। तो हमारे पास एक साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट है, तो मैंने उससे चेक किया, तो इंस्ट्रूमेंट उधर ही लेकर गया जहाँ पर ये स्कल्स पड़े हुए थे। तो वहाँ पर उनके घर में 3 स्कल्स मैंने बाहर करवाए, तो फिर एनर्जी लेवल चेक किया तो उससे उनका एनर्जी लेवल बढ़ गया और उसके बाद वो समस्या उनकी परमानेंटली खत्म हो गई। नेक्स्ट है, ये पिरामिड है। मैं उन लोगों के लिए बोलूँगा जो अपना नया घर बना रहे हैं। हमारे आज सेशन के अंदर बहुत सारे बिल्डर्स होंगे, आर्किटेक्ट्स होंगे, इंटीरियर कंसल्टेंट्स होंगे, वो भी चाहते हैं कि हमारे क्लाइंट्स की जो साइट मतलब बहुत अच्छी बने। तो आपने क्या करना है, पूरे प्लॉट के घर के अंदर, पूरे प्लॉट के अंदर सेंटर में ये गोल्डन पिरामिड, इसको 2G 3G भी बोलते हैं, प्रोमैक्स 2G प्रोमैक्स 3G भी बोलते हैं। तो ये प्लॉट के सेंटर के अंदर आपने एक पिट करके करीब 2.5 से 3 फीट गहरा, और इसको चार्ज करके आप उसके अंदर रख दीजिए, तो ये पूरी बिल्डिंग को ये ताकत देता रहेगा। ये मल्टीविटामिन का काम करता है। तो क्वेश्चन ये है कि चार्ज कैसे करना है। दोनों हाथ रब करने हैं, राइट, और लेफ्ट हैंड पे इसको पिरामिड को रखना है, राइट हैंड टॉप पे रख देना है, और 9 टाइम्स अपने घर की सुख शांति के लिए एक विश 9 टाइम्स आपने रिपीट करनी है। तो उसके बाद आपने उस पिट के अंदर ये पिरामिड बिल्कुल स्ट्रेट रख देना है और इसको टॉप तक सैंड से फिलिंग करके उसके बाद मसाला वगैरह डाल के उसको परमानेंट अंदर जमीन के अंदर डाल देना है। तो जब तक ये अंदर रहेगा ये ऊर्जा देता रहेगा पूरी बिल्डिंग को, तो कहीं पर भी वो डेफिशिएंसी नहीं आएगी। ये पूरी करता है डेफिशिएंसी, एनर्जी पूरी कर देता है ये। नेक्स्ट है, ये भी उन लोगों के लिए जो कंस्ट्रक्शन लाइंस के अंदर हैं, बिल्डर्स हैं। तो नहीं, जब बहुत टाइम पे देखा गया कि जब कंस्ट्रक्शन होती है तो बीच में रुक जाती है। तो उसका एक कारण ये होता है, जो मैंने ऑब्जर्व किया पिछले काफ़ी लंबे समय से, कि आप कभी भी प्लॉट के अंदर नॉर्थ ईस्ट में या ब्रह्म स्थान पे सेंटर ऑफ द प्लॉट आप कभी भी वहाँ कंस्ट्रक्शन मटेरियल ना रखें। वहाँ रखने से ये अचानक चलती चलती जो कंस्ट्रक्शन है एकदम से रुक जाती है। कारण कुछ भी बन सकता है, और कुछ लोग टेम्परेरी टॉयलेट बना देते हैं नॉर्थ में, नॉर्थ ईस्ट में, उसकी वजह से भी ये कंस्ट्रक्शन जो है रुक जाती है। तो ये काम नहीं करना है। ओके, तो ये है कि खुदाई कहाँ से करें, चिनाई कहाँ से करें प्लॉट के अंदर। तो हमेशा खुदाई जो है, एक्सकेवेशन जो है नॉर्थ ईस्ट से करें, नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट की तरफ चलें, और जो चिनाई है वो साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट की तरफ करें। तो इससे होगा क्या, तो आपकी पूरी की पूरी कंस्ट्रक्शन जो है निर्विघ्न कंप्लीट हो जाएगी। ये बहुत बार देखा गया है। तो अगर ये दोनों तीनों चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो साइट पे कोई प्रॉब्लम आती नहीं है। अदरवाइज बहुत सारी साइट पे मिसहैपनिंग हो जाती है। इवन बच्चा टेरेस पे था एक साइड पे, वो नीचे भी गिर गया, उसकी डेथ भी हो गई। तो बहुत सारे ये मिसहैपनिंग से बचने के लिए ये 2-3 चीजें अगर आप ध्यान रखोगे तो आपकी साइट जो है इजीली कंप्लीट हो जाएगी। अब मैं यहाँ बता रहा हूँ, ये एक नई चीज है, एसेंशियल ऑयल। ये मैं आपको सैंपल दिखा रहा हूँ, ये एसेंशियल ऑयल है, अगर आप देख पा रहे हो तो ये क्या करना है, एक आप डिफ्यूज़र इजीली अवेलेबल है मार्केट के अंदर। डिफ्यूज़र लेना है, उसके अंदर थोड़ा सा पानी डालना है, और ऑयल का, एसेंशियल ऑयल का 2 से 3 ड्रॉप उसके अंदर डाल देना है, और इसको प्लग ऑन कर देना है। तो इससे क्या होगा, पूरे घर के अंदर जितनी भी एनर्जीज अनइवन है, इम्बैलेंस है, वो पूरी बैलेंस कर देता है। ये एसेंशियल ऑयल क्या है, ये नेचुरल प्लांट्स का एक्सट्रैक्ट है, इसमें कोई केमिकल मिक्स नहीं होता। तो अगर आपको कुछ भी एनर्जीज के बारे में नहीं पता, तो आप अगर ये सिर्फ एसेंशियल ऑयल भी यूज करेंगे तो आपके घर की जो है पूरी एनर्जी जो है बैलेंस कर देता है। अब बहुत सारे एरियाज के अंदर, बहुत सारे फ्लैट्स के अंदर, घर के अंदर नॉर्थ ईस्ट में किचन आती है। तो हमें सबको पता है, ज़्यादातर लोगों को पता है कि नॉर्थ ईस्ट में किचन गलत होती है। तो लेकिन
हम लोग किचन शिफ्ट नहीं कर सकते क्योंकि बहुत कॉस्ट पड़ जाती है, पॉसिबल नहीं होता। तो इसके लिए भी परमानेंट सोल्यूशन है कि आप नॉर्थ ईस्ट के अंदर भी एक स्टड डालें और साउथ ईस्ट के अंदर भी एक स्टड डालें। जो फायर है वो शांत हो जाएगी और साउथ ईस्ट में एक्टिवेट हो जाएगी, तो वहां से आपको नॉर्थ ईस्ट में किचन जो है शिफ्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये भी आपको एक परमानेंट सोल्यूशन है। आई विल रिक्वेस्ट टू एवरीवन प्लीज म्यूट योरसेल्फ प्लीज। अगर आपके घर में अगर आपको लगता है कि बहुत रेस्टलेसनेस है, बहुत ज़्यादा नींद आती है, इरिटेशन बहुत है, सुस्ती बहुत होती है और ऐसा लगता है कि ज़िंदगी में क्या रखा है, सुसाइड कर लें, हाइपरटेंशन है, अगर आपको सिम्टम्स घर के अंदर दिखाई देते हैं तो आप मान के चलो कि वहाँ पर जियोपैथिक स्ट्रेस लाइंस हो सकती हैं। अब ये जियोपैथिक स्ट्रेस लाइंस क्या होती हैं? ये ज़मीन के नीचे से स्ट्रॉन्ग रेडिएशंस आती हैं और ड्यू टू द कंस्ट्रक्शन ऑफ हाई रेज बिल्डिंग, अंडरग्राउंड मेट्रोज, तो नीचे की जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं वो उसकी डिस्टर्बेंस की वजह से ये रेडिएशन लाइंस जो है ऊपर आ जाती हैं, ये लाइन के फॉर्म में आती हैं। तो हम ये साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट है, तो इसकी हेल्प से हम लाइंस डिटेक्ट करते हैं और इसको इजीली क्योर कर देते हैं। लाइंस क्योर होने से ये सारी प्रॉब्लम इमीडिएटली सॉर्ट आउट हो जाती हैं। अगर आपकी अमाउंट जो है मार्केट में स्टक हो जाती है तो आपने क्या करना है, अगेन एक डिफ्यूज़र लेना है और अब इस बार इस डिफ्यूज़र को आपने पूरे घर में एक ही रखना है, जगह जगह नहीं लगाने हैं। इस डिफ्यूज़र के अंदर थोड़ा सा पानी डालना है और 2-3 ड्रॉप एसेंशियल ऑयल के डालने हैं और इसको साउथ ईस्ट में रखना है। साउथ ईस्ट में रखने से, चाहे आपका ऑफिस है, चाहे घर है, चाहे दोनों जगह, अगर अलग अलग है तो दोनों जगह पे रखो, तो इसमें ये आपका जो फंसा हुआ पैसा है वो वापस लाने में ये बहुत हेल्प करता है। तो इसको आप यूज़ करें। इसके बहुत जल्दी और फास्ट इम्पैक्ट है इसका, इस रेमेडी का। अगर आप चाहते हैं और आपको फील हो रहा है कि जो मैं काम कर रहा हूँ उसकी प्राप्ति टाइम पे नहीं होती, तो एक सिंपल सा आपको ट्रीटमेंट बता रहा हूँ। आपने क्या करना है, अपने ऑफिस का या घर का या दोनों जगह का आपने देखना है कि वेस्ट जोन कहाँ पर है, एग्जैक्ट पश्चिम दिशा कौन सी है आपके घर की या ऑफिस की। उसमें आपने एक स्क्वायर वाइट कलर की वॉल क्लॉक लगानी है। 2 कंडीशंस हैं, इट शुड बी वाइट एंड इट शुड बी स्क्वायर। तो तीसरा क्या करना है, इसको एग्जैक्ट वेस्ट डायरेक्शन में लगाना है और इसका समय जो है एग्जैक्ट आपने जो एफएम का है या दूरदर्शन का है वही रखना है, ना तो 2 मिनट आगे ना 2 मिनट पीछे। तो इसका मतलब है आपको समय पे प्राप्ति हो। क्यों हो? क्योंकि वेस्ट जोन जो है गेन का जोन होता है, गेन्स टाइमली। तो इस रेमेडी को आप यूज कीजिए। ये सिंपल एक और रेमेडी बता रहा हूँ जो अभी आप घर में कर सकते हैं लॉकडाउन पीरियड के दौरान। ये गूगल लबान के कप्स हैं, इजीली अवेलेबल हैं, 70-75 रुपए का पैकेट आता है और 8-10 इसके अंदर पीसेज होते हैं। तो इसमें एक पीस आपने लेना है और सनसेट के दौरान करीब 6:30-7 बजे के आसपास एक पीस को आपने इसको जला लेना है बर्नर पे रख के, और इसको जला के और पूरे घर में इसका धुआं करना है, इंक्लूडिंग टॉयलेट्स। हर जगह पे कोई कोना नहीं छोड़ना, स्टोर भी नहीं छोड़ना, हर जगह पे आप इसका धुआं करें। तो इससे क्या होगा, पूरे घर की जो नेगेटिव एनर्जी है वो निकल जाएगी। तो एक बहुत खुशनुमा माहौल रहेगा, ऐसे लगेगा कि अभी घर के अंदर हवन जैसा माहौल जो है, अच्छी खुशबू देता है ये, और ये नेगेटिव एनर्जीज को भगाने में बहुत हेल्प करता है। जो सिंपल ट्रीटमेंट है आप कर सकते हैं घर पे, ऑफिस में, हर जगह पे, कहीं पर भी, इवन फैक्ट्रीज में भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है, कभी भी नॉर्थ ईस्ट के अंदर रेड फैमिलीज कलर नहीं होने चाहिए। रेड फैमिली कलर कौन कौन से हो गए? रेड, पिंक, ब्राउन, चेरी, चॉकलेट। ये कभी भी नॉर्थ ईस्ट के एरिया में ना लगाएं, नहीं तो क्या होगा, अपॉर्चुनिटीज कम आएंगी, मनी फ्लो स्लो हो जाएगा, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट वाटर एलिमेंट है और अगर फायर रिलेटेड से लगाएंगे तो चीज़ों में विघन पड़ना स्टार्ट हो जाता है। तो इस बात का खास ध्यान रखना है आपने। और नॉर्थ ईस्ट में रेड कलर में क्या क्या हो सकता है? कर्टन हो सकते हैं, सोफाज हो सकते हैं, कारपेट हो सकते हैं, तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है। तो बेस्ट नॉर्थ ईस्ट में कलर क्या है? वाइट, ऑफ वाइट, क्रीम और ग्रीन, पिस्ता और एनी टाइप ऑफ ब्लू कलर, ये सारे आप नॉर्थ ईस्ट कलर में ले सकते हैं। और साउथ ईस्ट के अंदर कभी भी ब्लू एंड ब्लैक कलर ना यूज करें, क्योंकि वो फायर कलर है और ये जो ब्लू एंड ब्लैक है वाटर कलर रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये एंटी एलिमेंट है। तो इसलिए साउथ ईस्ट के अंदर कभी भी ब्लू ब्लैक और नॉर्थ ईस्ट के अंदर कभी भी
रेड फैमिली से रिलेटेड कलर यूज ना करें। नेक्स्ट है अशोका पिलर। जो लोग लिटिगेशन से काफ़ी परेशान हैं तो उनके लिए छोटा सा ये उपाय है, रेमेडी है। आपने क्या करना है, ये इजीली अवेलेबल है अशोका पिलर, आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं और अगर दिल्ली में है तो आप जनपद से भी ले सकते हैं। तो ये वुडन का लेना है, कदम वुड का आता है, मेटल के भी आते हैं, लेकिन आपने लकड़ी का लेना है और 10 से 11 इंच की हाइट वाला ले सकते हैं। और आप इसको एग्जैक्टली जो है नॉर्थ वेस्ट में हैंग कर दीजिए। और इसके साथ साथ क्या करना है, जो भी लिटिगेशन के डॉक्यूमेंट्स हैं आप उनको डॉक्यूमेंट्स को वाइट कलर के बैग के अंदर डाल के एग्जैक्ट वेस्ट जोन के अंदर आप उसको रख दीजिए। क्योंकि जैसे मैंने बताया कि वेस्ट जोन गेन का जोन है, तो वहाँ से गेंस मीन्स आपके फेवर में गेंस होने स्टार्ट हो जाएंगे। तो लिटिगेशन की वजह से आदमी बहुत परेशान हो जाता है। तो इसलिए छोटे छोटे अगर 2 ट्रीटमेंट करेंगे, नॉर्थ वेस्ट में आप अशोका पिलर लगाइए और वेस्ट के अंदर अपने जो भी डॉक्यूमेंट्स है उसकी फोटो कॉपी करके या ओरिजिनल जो है वेस्ट डायरेक्शन में लगा दीजिए। Deepak ji, your voice is breaking sometime. Can you just, see, just minute, adjust it once ओके, again? Okay. नाउ इट्स ओके, आई एम ऑडिबल? Yes. ओके, थैंक यू सर। नेक्स्ट, ये हमने बहुत बार देखा होगा, तो हम बहुत धागे बांध लेते हैं, कलावास बांधना बहुत अच्छी बात है, बांधो, लेकिन बहुत ज़्यादा बांधते हैं। कहीं पर भी जाते हैं तो काला धागा वो भी बांध लेते हैं, कलावा भी बांध लेते हैं। वो बांधो, जरूर बांधो, लेकिन इन धागों को आप 1 महीने बाद चेंज कर दो। क्योंकि हमारी बॉडी से जो स्वेटिंग होती है उसमें जो नमक और पानी होता है, जहाँ हम नहाते हैं, उससे जो सोप की वजह से ये नेगेटिव हो जाते हैं। ये हमने इंस्ट्रूमेंट से चेक किया है। तो इनको काट कर आपने बांध लो, ताकि आप नेगेटिव एनर्जी कैरी ना करो। आपको पता नहीं चलेगा कि आपके साथ आप कौन सी चीज़ नेगेटिव कैरी कर रहे हो। तो इनका एनर्जीज का इम्पैक्ट सीधा सीधा ब्रेन पे होता है, तो माइंड स्टक हो जाता है नेगेटिव एनर्जीज के साथ। तो ऐसी नेगेटिव एनर्जीज जो है आप साथ कैरी ना करें। तो आप हर महीने 1 महीने के बाद इनको चेंज करते रहो। नेक्स्ट है गॉड गॉडेस पेंडेंट। तो बहुत सारे लोग जो है पेंडेंट पहन लेते हैं और भगवान से रिलेटेड ही पहनते हैं। तो मेरे अभी एक क्लाइंट ने भगवान शिव का जो है पेंडेंट पहना हुआ था। तो वो जब से उन्होंने पहना था वो बड़े परेशान रहते थे, एक बिना वजह का मन पे बोझ रहता था, डिप्रेशन टाइप रहता था, खुश नहीं रहते थे। तो मैंने उनको चेक किया, तो मैंने देखा कि उन्होंने पेंडेंट पहन रखा है। तो ये पेंडेंट मैंने उतरवाया, उसके बाद वो बहुत अच्छा फील करने लगे। तो अभी भी बिल्कुल परफेक्ट है, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब ये है, क्योंकि ये आस्था से जुड़ा हुआ बात है, तो इसलिए आप इसको नहीं पहनना चाहिए। तो इससे क्या हो सकता है कि आपकी मैरिड लाइफ भी डिस्टर्ब हो सकती है। क्योंकि भगवान है तो आप उनको, मेरा मानना यह है कि मंदिर में रख के आप उनको वैसे पूजा कर लीजिए। साथ कैरी करने में भी एक दिक्कत ये है, कभी आप टॉयलेट भी जाते हैं तो साथ भी लेकर आप कैरी करते हैं। तो एक तरफ तो हमारी आस्था भी जुड़ी है, लेकिन हम एक दूसरी तरफ जो है टॉयलेट वगैरह के गंदी जगह पे भी लेके जाते हैं। तो मेरा ये मानना है कि हमें ये खुद नहीं पहनना चाहिए, ये भगवान से रिलेटेड नहीं पहनना चाहिए। नेक्स्ट है, ये मैंने पहले जैसे बताया कि जितनी भी मैं बातें बता रहा हूँ अपने एक्सपीरियंस के बेस पे बता रहा हूँ। दीपक जी, एक बार जरा अपना माइक और एडजस्ट कर लीजिए प्लीज। जी सर। हाँ, नाउ इट्स ओके सर, हाँ, मच ऑडिबल? बेटर। हाँ, नो ओके सर, प्रॉब्लम। थैंक यू सर। तो एक ये मैं बताना चाहूँगा कि कभी भी आप अपने टेरेस पे या बालकनी के अंदर पूरी रात कपड़े ना रहने दें, उनको आप सनसेट से पहले ही उतार लें। क्योंकि सारी रात ऊपर कपड़े सुखाना ठीक नहीं है। मैं साइंटिफिक कारण नहीं इसका बता पाऊंगा, लेकिन जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है तो उसकी वजह से मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आप इनको उतार लीजिए करें सनसेट से पहले पहले। और ये कुछ छोटी छोटी चीज़ें मैं बता रहा हूँ जो हम घर में आसानी से कर सकते हैं। तो एक तो सभी घरों में तुलसी प्लांट होना चाहिए, क्योंकि ये काफ़ी एयर प्योरीफायर है। और तुलसी प्लांट आप नॉर्थ ईस्ट में भी रख सकते हैं, साउथ ईस्ट में भी रख सकते हैं, लेकिन अपने घर के हिसाब से जहाँ पर धूप ज़्यादा है वहाँ ना रखें। तो 2 डायरेक्शन आप इसके लिए परफेक्ट है, आप दोनों जगह पे भी रख सकते हैं। और नेक्स्ट है कि आप घर के अंदर सेंधा सॉल्ट उसका मॉपिंग कर सकते हैं। इसकी क्वांटिटी होनी चाहिए ½ किलो, ½ kg पर बकेट। तो ½ किलो की क्वांटिटी एक बकेट के अंदर डाल के पाउडर फॉर्म के अंदर
उसका मॉपिंग करें और उसके साथ आप फिनाइल और सर्फ वगैरह यूज़ ना करें। तो फाइनल जो मॉपिंग है सॉल्ट की ही होनी चाहिए। तो ये क्या करता है, पूरे घर की नेगेटिव एनर्जी जो है एब्जॉर्ब कर लेता है। नेक्स्ट क्या कर सकते हैं, अगर आपको कुछ नहीं पता कि टॉयलेट गलत है, कोई दिशाओं का ज्ञान नहीं है, लेकिन किसी ने बताया कि ये टॉयलेट गलत है, तो आप सीधा सीधा काम करो, एक कांच का बाउल लो चौड़े मुंह का, उसके अंदर ½ kg सेंधा सॉल्ट या फिटकरी, एक बड़ा टुकड़ा जो है फिटकरी वहाँ रख दें, और इस नमक को हर महीने आप चेंज करें। फिटकरी को करीब 1.5 महीने बाद चेंज कर सकते हैं, नमक को 1 महीने बाद चेंज करना चाहिए। तो इस नमक को कभी भी फ्लश ना करें, पेड़ के नीचे ना डालें, क्योंकि ये पूरे महीने का नेगेटिव एनर्जी ऑब्जॉर्व किया होता है। तो इसके लिए इसको पॉलीथीन के अंदर डाल के आप बाहर दे सकते हैं या किसी खाली प्लॉट में छोड़ के आ सकते हैं। नेक्स्ट है, अपने घर को आप हर हफ्ते सफाई करें, क्योंकि पहला वास्तु का नियम ही यही है, साफ सफाई। तो सफाई होती है, साफ सफाई होती है। मैं देखता हूँ बहुत सारे घरों में, फैक्ट्रीज के अंदर जाले लगे होते हैं, सीलन आई होती है, क्रैक्स पड़े होते हैं और उसको रिपेयर भी नहीं कराते। तो और इवन जो है न्यूज़पेपर की रद्दी जो है वो उसको भी बेचते नहीं है, पड़ी रहती है, इतना टाइम ही नहीं होता। तो अभी भी टाइम है और अभी आपकी हैबिट भी बन जाएगी। तो इसको आप वीकली अगर घर को साफ करोगे तो एनर्जी का फ्लो अच्छा बने रहेगा, कहीं स्टेगनेट एनर्जी नहीं होगी। नेक्स्ट है, आप सुबह उठते ही पूरे घर के डोर्स एंड विंडोज जो है ओपन कर दीजिए, ताकि पूरे घर में क्रॉस वेंटिलेशन अच्छा हो सके। जितना क्रॉस वेंटिलेशन अच्छा होगा उतने आप स्वस्थ रहेंगे। पूरी नाइट का जितना भी जो बैड एनर्जीज है, जो नेगेटिव एनर्जीज है, गैसेज है, वो घर से बाहर निकल जाती हैं। कमर्शियल प्लेस के लिए कुछ ये टिप्स हैं। तो कमर्शियल एरिया का जो नॉर्थ ईस्ट है, सबसे नाजुक एरिया जो है, वो बिल्कुल साफ सुथरा, नीट एंड क्लीन रहना चाहिए। और जगह जगह पे भगवान की फोटोग्राफ्स ना लगाएं, क्योंकि हर फोटो के अंदर, हर मूर्ति के अंदर एनर्जी है। जगह जगह इतनी एनर्जी आप क्रिएट कर दोगे तो इम्बैलेंस हो जाएगा। तो एक बैलेंस बना के रखोगे तो ठीक चलेगी लाइफ। और नेक्स्ट है, आपके घर में या ऑफिस में कहीं पर भी दरवाजों में अगर ची की आवाज़ आती है तो ये बैड एनर्जी क्रिएट करती है। कभी भी आपने देखा होगा, आधी रात अगर उठो आप और टॉयलेट का दरवाजा खोलो तो वहाँ ची की आवाज़ आती है, तो एक अजीब प्रकार का डर सा लगता है। तो ये नेगेटिव एनर्जी क्रिएट करती है, तो इसको आप ऑयलिंग कर सकते हैं और ये नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्या हो सकता है कि किसी भी ऑफिस या फैक्ट्री के सेंटर में आप कोई भी जो प्रोडक्ट है आपका रॉ मटेरियल या फाइनल प्रोडक्ट बिल्कुल ना रखें। तो चांसेस है कि स्टेगनेंट हो जाता है, निकलता नहीं है और पूरे एरिया का जो है एनर्जी लेवल भी स्लो कर देता है। तो इस चीज़ से बचें। ये छोटे छोटे टिप्स हैं, बहुत ईजी है, आप कर सकते हैं। नेक्स्ट है, आप डिफ्यूज़र ऑफिस में भी यूज़ कर सकते हैं। आपको नहीं पता कहाँ एनर्जी बढ़ी हुई है, कहाँ लो है, तो आप क्या कर सकते हैं, डिफ्यूज़र को यूज़ करें और डिफ्यूज़र को पानी के अंदर 2-3 ड्रॉप डाल के करीब करीब 8 से 10 से 12 घंटे तक इसको ऑन रखें, ताकि इसका जो फ्रेग्रेंस है चारों तरफ अच्छे से फैल जाए और पॉजिटिव एनर्जी आपके ऑफिस में बनी रहे। ये कुछ डूज एंड डोंट्स हैं। अभी हम लॉकडाउन पीरियड के अंदर हैं, तो अब क्या कर सकते हैं, बहुत सारे लोग अब घर से ऑपरेट कर रहे हैं। तो जब भी आप ऑफिस के लिए काम कर रहे हैं तो आप कोशिश करो कि आपका फेस नॉर्थ की तरफ या ईस्ट की तरफ हो। फेस नॉर्थ की तरफ या ईस्ट की तरफ। जो स्टूडेंट हैं, पढ़ने वाले हैं, जो छोटे बच्चे हैं, वो ईस्ट की तरफ फेस कर सकते हैं, और जो बड़े बच्चे हैं वो वेस्ट की तरफ भी फेस कर सकते हैं। वेस्ट की तरफ भी अच्छे रिजल्ट हैं। और सुबह का टाइम आपके पास बहुत होता है, तो एक्सरसाइज, योगा, मेडिटेशन, ये सब आप कर सकते हैं। अपना शेड्यूल ना बिगड़े और कोई जो है प्रोफेशनल स्किल जो है आप सीखते रहें। तो क्या नहीं करना चाहिए, कभी भी जब आप वर्किंग के लिए बैठते हैं, ऑफिस के काम के लिए बैठते हैं, तो बिल्कुल दरवाजे के सामने ना बैठे। दीपक जी, अगर आपकी सामने, आवाज नहीं सुन पा रहा हूँ मैं। ओके, नाउ आई एम ऑडिबल सर, नाउ इट्स क्लियर सर, हेलो, आई एम ऑडिबल सर, ओके सर, थैंक यू। तो कभी भी आप जब काम के लिए बैठते हैं तो आप बिल्कुल दरवाजे के सामने ना बैठें, ताकि जब जब दरवाजा खुलेगा तो आप डिस्टर्ब हो जाएंगे, तो फोकस नहीं बन पाएगा, कंसंट्रेशन नहीं बन पाएगा। तो आप साइड से दरवाजे से हट के बैठे। तो पूरे घर में जहाँ पर आपको लगता है एनर्जी लेवल लो है, ठीक है, वहाँ पर बिल्कुल ना बैठे। तो जहाँ आपको लगता है एनर्जी लेवल अच्छा है, वहाँ नॉर्थ फेसिंग या ईस्ट फेसिंग बैठे। ये मैं एक वीडियो दिखाने जा रहा हूँ। अभी रिसेंटली मैंने जनवरी में सोनी इंडिया का काम किया था, तो मैंने यहाँ बताया कि हम
जियोपैथिक स्ट्रेस लाइंस कैसे डिटेक्ट करते हैं। तो इसका जो क्वालिटी ऑफ साउंड है वो थोड़ा सा पुअर है, क्योंकि बहुत तेज़ हवा चल रही थी उस दिन। तो इसमें क्या करते हैं हम लोग, इंस्ट्रूमेंट के अंदर उस एरिया का वाटर सैंपल डालते हैं, और वाटर सैंपल डाल के पूरे ऑफिस के मेन गेट पे खड़े होके हम लोग ये इंस्ट्रूमेंट से चेक करते हैं कि स्ट्रेस लाइन अंदर है कि नहीं है। अगर वो इंस्ट्रूमेंट ऑटोमेटिकली अंदर की साइड इंडिकेट करता है तो इसका मतलब है अंदर स्ट्रेस लाइन है। अगर वो इंस्ट्रूमेंट ऑटोमेटिकली बाहर की तरफ इंडिकेट करता है तो इसका मतलब है अंदर स्ट्रेस लाइन नहीं है। और कहाँ पर स्ट्रेस लाइन है वो भी मैंने इसमें बताने की कोशिश की है। तो थोड़ा सा ये 1 या 2 मिनट की वीडियो है, तो आप इसको देखिए प्लीज। और मैंने जैसे कि बताया है कि जैसे ही मैंने मेन गेट पे खड़ा होकर वाटर सैंपल इस इंस्ट्रूमेंट के अंदर डाला, अगर इंस्ट्रूमेंट ऑटोमेटिकली अंदर की तरफ इंडिकेट कर रहा है तो अंदर स्ट्रेस लाइन है, अगर बाहर की तरफ इंडिकेट कर रहा है तो स्ट्रेस लाइन नहीं है। और जहां पर ये इंस्ट्रूमेंट मूव करके अपने आप 180 डिग्री पे ओपन हो जाएगा तो वहाँ स्ट्रेस लाइन प्रेजेंट है। आप इसको सिर्फ फील कर लीजिए, अगर साउंड नहीं है तो प्लीज। मैं अभी स्टार्ट कर रहा हूँ दोबारा इसको। थैंक यू। दीपक जी, साथ ही साथ आप भी बताते जाइए वहां पे क्या हो रहा था, क्योंकि मुझे तो पता है, आई थिंक जो काफी सारे लोग हैं उनको पता नहीं है, तो आप उनको बताते जाइए आप उनको वहां पे क्या बता रहे थे उस समय। अब आप देख पा रहे हैं यहाँ इंस्ट्रूमेंट अपने आप 180 डिग्री पे खुल गया है, तो उसका मतलब यहाँ पर स्ट्रेस लाइन प्रेजेंट है। सॉरी। सिस्टम सॉरी। यहाँ पर भी देखेंगे आप इंस्ट्रूमेंट मूव करना स्टार्ट हो गया। Why? और ये यहाँ कहीं ओपन हो रहा है। It means
इट मीन यहाँ पर भी एक लाइन प्रेजेंट है, ये देखिए ओके यहाँ पर ओपन होता है, आगे मूव करता हूँ बंद हो जाता है, तो ये राइट। तो यहाँ पर ये लाइन ऐसे मूव हो रही है, राइट। तो ये हम लोग यहाँ पर आपने देखा होगा, यहाँ हम स्ट्रेस लाइन चेक कर रहे हैं, तो यहाँ पर इस एरिया में 2 स्ट्रेस लाइन थी। तो इसकी और जानकारी के लिए आप मेरे से बाद में संपर्क कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं कि कौन कौन सी 16 दिशाएं होती हैं। 16 दिशाएं हैं नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट ईस्ट साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट साउथ साउथ ईस्ट, साउथ 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 वेस्ट, साउथ वेस्ट वेस्ट साउथ वेस्ट, वेस्ट वेस्ट नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट। अब इनके सिग्निफिकेंस क्या है? नॉर्थ क्या रिप्रेजेंट करता है? मनी एंड अपॉर्चुनिटीज। नॉर्थ ईस्ट क्या रिप्रेजेंट करता है? हेल्थ एंड इम्यूनिटी। नॉर्थ ईस्ट क्या रिप्रेजेंट करता है? क्लैरिटी ऑफ माइंड, क्लैरिटी माइंड। ईस्ट नॉर्थ ईस्ट फन रिक्रिएशन। ईस्ट रिप्रेजेंट करता है एसोसिएशन। ईस्ट साउथ ईस्ट चर्निंग। साउथ ईस्ट कैश लिक्विडिटी एंड फायर जोन। साउथ साउथ ईस्ट पावर एंड कॉन्फिडेंस। साउथ रिप्रेजेंट करता है रिलैक्सेशन एंड फेम, और साउथ साउथ वेस्ट इंडिकेट करता है डिस्पोजल, वेस्टेज, एंड साउथ वेस्ट स्किल एंड रिलेशनशिप, और वेस्ट साउथ वेस्ट एजुकेशन एंड सेविंग्स। वेस्ट मैंने पहले बताया गेन्स, और वेस्ट नॉर्थ वेस्ट डिप्रेशन, लो मूड्स, एंड नॉर्थ वेस्ट स्पोर्ट, बैंकिंग, एंड नॉर्थ वेस्ट सेक्स एंड अट्रैक्शन। तो ये 16 दिशाएं हैं और इनकी ये सिग्निफिकेंस है ये इनका। अब मैं ये बताना चाहूँगा कि पूरे दिशाओं में, मैंने 16 दिशाओं में टॉयलेट से टॉयलेट लगा रखी हैं, तो इनके क्या नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं और कौन सी ऐसा जोन है जिसमें टॉयलेट जो है आइडियल है। तो नॉर्थ में टॉयलेट होने से क्या होता है? नॉर्थ में टॉयलेट होने से कैश फ्लो और अपॉर्चुनिटीज़ में रुकावट आती है। नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट होने से आपका और आपकी फैमिली का इम्यून सिस्टम डाउन होता है। नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट होने से आपको आइडियाज़ नहीं आएंगे, माइंड ब्लॉक हो जाएगा, और हेल्थ इश्यूज मैंने देखा गया है, मेरे पास करीब 100 के स्टडीज़ हैं कि नॉर्थ ईस्ट में अगर टॉयलेट है तो वहाँ पर मेजर हेल्थ इश्यूज आए हैं। ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में है तो मैंने ये पाया कि वहाँ पर वो जो है परिवार के अंदर जो खुशी जो है, फन है, वो ख़त्म हो जाता है। और अगर ईस्ट में टॉयलेट है तो आपके एसोसिएशन बहुत लंबी नहीं चलती, बहुत आप ज़्यादा रिलेशनशिप आगे नहीं बढ़ा पाते हो। ईस्ट साउथ ईस्ट में आप टॉयलेट ले सकते हो, ये फिर भी ठीक स्थान है क्योंकि ये चर्निंग जोन है। साउथ ईस्ट कैश लिक्विडिटी जोन है, अगर साउथ ईस्ट के अंदर टॉयलेट है तो आप कैश क्रंच से फेस मतलब प्रॉब्लम आती रहेगी, कैश क्रंच की आपको। साउथ ईस्ट में अगर टॉयलेट है, चाहे वो घर है चाहे ऑफिस में है, तो कॉन्फिडेंस लो होगा। साउथ में अगर टॉयलेट है तो नेम एंड फेम में दिक्कत आएगी। साउथ वेस्ट में टॉयलेट बनाना चाहिए, ये आइडल जोन है, इसके अंदर बिल्कुल बनाएं आप। और साउथ वेस्ट में अगर टॉयलेट है तो इसमें स्किल और रिलेशनशिप के अंदर आपको प्रॉब्लम आएगी। वेस्ट साउथ वेस्ट में अगर टॉयलेट है तो आपकी सेविंग्स और एजुकेशन के अंदर प्रॉब्लम आती है। वेस्ट जोन के अंदर अगर टॉयलेट है तो आपको गेन्स में दिक्कत आती है, मैंने ज़्यादा प्राप्ति कम। वेस्ट नॉर्थ वेस्ट के अंदर बिल्कुल आप टॉयलेट बना सकते हो, ये अच्छी जगह है। और नॉर्थ वेस्ट के अंदर अगर टॉयलेट है तो ये सपोर्ट सिस्टम, चाहे वो बैकअप, चाहे हमारे बैंक बैलेंस का है, चाहे हमारे एम्प्लॉयज़ का बैकअप है, तो उसमें इम्पैक्ट आता है। नॉर्थ वेस्ट में है तो ये हमारी मैरिड लाइफ पे इम्पैक्ट डालता है, नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है। तो सब ये मेरे कॉन्टैक्ट्स हैं, कॉन्टैक्ट नंबर है 9810017549। आप कभी भी मेरे से संपर्क कर सकते हैं। और मेरे चैनल का नाम है जियोसॉल्व, आप वो वहाँ पर मैंने करीब 25 वीडियोस डाली हुई हैं जियोपैथी के ऊपर और बेसिक वास्तु के ऊपर, आप कभी भी देख सकते हैं। ओवर टू अमिताभ जी। अमिताभ सर। हाँ जी सर। Sir, any questions from participants? If you can just type it in the box, it will be easy for us to answer. आई एम ऑन पेंडेंट सर, पेंडेंट ओम का है अगर तो ये भी भगवान से रिलेटेड है। तो पेंडेंट एक बार मैं चाहूँगा कि रात को ना पहने, आप दिन में फिर भी पहन लीजिए। स्टैचूज एंड मास्क, व्हाट अबाउट द राम सीता मास्क? राम सीता के सर आप रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, भगवान से रिलेटेड है, लेकिन मेल फीमेल का और ये जैसे ड्रामने वो ना रखें। व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ ड्राइंग क्लोथ?
ऑल नाइट सर, ये मैंने पहले भी बताया था कि इसका साइंटिफिक कारण नहीं बता पाऊंगा, लेकिन ब्रह्मांड के अंदर बहुत सारी नेगेटिव चीज़ें घूमती हैं, तो इसलिए रात को कपड़े उतारो, ज़्यादा बेटर है। सर स्लाइड्स में आपको फिर शेयर कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। और What we will do is we will share the recording of the session with everyone. यस सर, जियोपैथिक स्ट्रेस से फाइनेंशियल प्रॉब्लम बिल्कुल होती है, हेल्थ प्रॉब्लम एज वेल एज फाइनेंशियल प्रॉब्लम होती है। ये क्या करता है, पूरी बिल्डिंग का एनर्जी लेवल भी सक कर लेता है, तो कई बार हमारा बेसिक वास्तु भी वहाँ पर काम नहीं करता है, तो इसलिए स्ट्रेस लाइन ठीक करना बहुत जरूरी है। ऑटो वाला सर बिल्कुल स्लाइड शेयर कर देंगे आपको, कोई दिक्कत नहीं है। अगर नॉर्थ ईस्ट का टॉयलेट ना यूज़ करें सर, ना यूज़ करो तो भी उसका इम्पैक्ट आएगा ही आएगा। उसके लिए जब तक आप उसका इलाज नहीं करोगे तब तक उसका इम्पैक्ट रहेगा, लगने से ही इम्पैक्ट स्टार्ट हो जाता है। भले आप ना यूज़ करो तो भी उसका इम्पैक्ट रहेगा। सर किचन की स्लाइड्स मैं अभी रिपीट नहीं कर पाऊंगा, लेकिन आपको शेयर कर देंगे सर स्लाइड्स। एनी रेमेडी फॉर बेटर हीलिंग फॉर एन इल पर्सन इन होम। सर आप अपने घर का, हेमांग सर अपने घर का नॉर्थ ईस्ट चेक करवाएं, और वो कारण हो सकता है। हीलिंग के लिए ऑयल यूज़ कर सकते हैं और स्टड यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट सेशन अभी बता देंगे आपको सर, मैम कब नेक्स्ट होगा। डोंट वॉक ऑपोजिट डोर वस्तु हो। एक सेकंड सर, दरवाजे के सामने आपको नहीं बैठना है, तो अगर दरवाजे खुले रहते हैं 2-3 घंटे लिए कोई दिक्कत नहीं है। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू। जी सर, निश्चल जी ने पूछा है कि वास्तु सिखाते हैं, बिल्कुल सिखाता हूँ सर, बहुत सारे स्टूडेंट हैं मेरे, और मैं सिंगल इंडिविजुअल भी सिखाता हूँ और ग्रुप में भी सिखाता हूँ। तो एज आर्किटेक्ट वी ऑलवेज ट्राई टू डिजाइन वॉशरूम्स टू फॉर ईच हाउ टू काउंटर दिस। सर आप मेरे साथ अगर प्लान करेंगे प्रदीप सर, तो मैं आपको बहुत सारे ऑप्शन दे दूंगा। ऐसे कम से कम 4 ऑप्शन तो हमारे पास हमेशा ही रहते हैं। तो आज तक मैंने बहुत सारी प्लानिंग की है, कम से कम मोर देन 500, ज़्यादा ही होंगी, तो उसमें मेरे को आज तक कोई दिक्कत आई नहीं है। इफ हाउस इज 3 BHK देन टॉयलेट शैल बी इन ऑल डायरेक्शन, कोई दिक्कत नहीं सर, आप स्टड यूज़ करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैनी वॉशरूम कोई दिक्कत नहीं सर, जो जो आपको लगता है, हमारे पास सारे टॉयलेट्स का परमानेंट सॉल्यूशन है। अब वॉशरूम हटाने की जरूरत नहीं है, किचन शिफ्ट करने की जरूरत नहीं है, आप स्टड यूज़ करो, आपको 100% बेनिफिट होगा, कोई घबराने वाली बात नहीं है। विराली जी थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। पवन जी थैंक यू। वास्तु कंप्लाइंट ड्राइंग इज ओनली ऑप्शन नाउ, यस सर। सर स्टड अंजलि जी मेरे पास से मिल जाएंगे आपको, कोई दिक्कत नहीं है। कॉस्ट क्या है दीपक जी? सर इसकी एक स्टड की कॉस्ट है 3000 और ऑयल की भी 3000 है सर। फर्दर डिस्कशन के लिए आपको बता दिया जाएगा सर, सबको मेल चला जाएगा। थैंक यू नवल। ओके थैंक यू सर नवल। और ओके थैंक यू नवीन जी सर, थैंक यू, थैंक यू। Okay, Deepak ji, there is a question, what are the plants to be used for good health? हाँ सर, प्लांट्स जो है घर के अंदर, जो पहली बात तो ये इंडोर ग्रीन प्लांट्स यूज़ करने चाहिए, और कोई भी फल वाले, खट्टे फल वाले प्लांट्स बिल्कुल यूज़ नहीं करने चाहिए हेल्थ के लिए। और मेरा दूसरा सजेशन ये है कि पूरे घर में इतना अति मत कर दो किसी भी चीज़ की कि वहाँ पर जो है कंजेशन हो जाए, थोड़ा सा इतना रखो कि प्लांट्स जो है बहुत ज़्यादा ना हो, बैलेंस स्टेट में हो। और साउथ वेस्ट के अंदर बहुत ज़्यादा प्लांट्स ना रखें, बहुत सारे मैंने देखा है लोग साउथ वेस्ट हैवी होना चाहिए, इस चक्कर में साउथ वेस्ट में प्लांट्स रख देते हैं, लेकिन प्लांट्स साउथ वेस्ट में ना रखें, नॉर्थ से लेके ईस्ट तक रख सकते हैं, नॉर्थ वेस्ट में रख सकते हैं। प्लांट लवर बिल्कुल ठीक है सर। कैक्टस को सर घर से बाहर रखें संजीव जी, घर के अंदर ना रखें कैक्टस, और खट्टे फल वाले बिल्कुल ना रखें जी। थैंक यू सर। कंसल्टेशन के लिए आप मेरे से पर्सनली बात कर सकते हैं। किचन सिंक सर आग और पानी दूर दूर होने चाहिए, कम से कम 2 से 3 फीट का डिस्टेंस होना चाहिए। ग्रीन कलर इन नॉर्थ वेस्ट में अगर आप ब्लू कलर ज़्यादा यूज़ करें तो ज़्यादा बेटर है, नहीं तो वाइट ऑफ वाइट क्रीम भी है। तुलसी प्लांट इस साइड में बिल्कुल ओके है, कोई दिक्कत नहीं, आप यूज़ कर सकते हैं। आई हैव बेसिक क्वेश्चन वास्तु टू नो डायरेक्शंस फॉर मेन एंट्रेंस
सर मेन एंट्रेंस के लिए पूरे घर के अंदर या पूरे किसी भी जगह के अंदर 32 अच्छी और बुरी एंट्रीज होती हैं, उसमें हमें वर्कआउट करना पड़ेगा कौन सी अच्छी है। नॉर्थ ईस्ट की अगर प्रॉपर नॉर्थ ईस्ट वर्कआउट कर पाओगे आप, तो वो धन की सेविंग की जो उनकी एंट्री होती है, और ईस्ट की अच्छी होती है, नॉर्थ की बहुत अच्छी होती है। थैंक यू लवप्रीत जी। on one very different question, as I never believed in all this, I agree that there are many things science cannot explain, but I wanted still pending on I want to know will depending on these. सर एक सेकंड, ये क्वेश्चन एक निकल गया है। कैन प्रेजेंटेशन, सर प्रेजेंटेशन आपको मिल जाएगी, मेल है हमारे पास सबकी। राजेश जी थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। सर एक क्वेश्चन था, एक बार जरा आंसर कर दिए इनका। जी 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 सर। One person wanted to know कि if believing in all this will make him a weak person. सर ये बिलीव करने में आप कमजोर नहीं बन जाओगे। देखो आप कुछ भी कर लो, वास्तु कर लो, एस्ट्रोलॉजी कर लो, न्यूमरोलॉजी कर लो, कुछ भी कर लो, एफर्ट्स तो आपको लगाने ही पड़ेंगे। सर ये टूल है, आपकी विल पावर बना के रखता है, आपका माइंड क्लियर रखता है। और वैसे भी मैं साइंस पे ज़्यादा काम करता हूँ, तो अगर कभी आपको मौका मिले तो मेरे ऑफिस आओ, मैं इसका साइंटिफिक आपको दिखा दूंगा इसका डेमोन्स्ट्रेशन कि हर चीज़ में एनर्जी है। तो एनर्जी है तो सर एनर्जी से बच नहीं सकते। वर्ल्ड में साइंस कहती है हर चीज़, लिविंग नॉन लिविंग, सब में एनर्जी है। तो हमें हम क्या करते हैं सर, एनर्जीज को बैलेंस ही करते हैं, इसलिए घबराने वाली बात नहीं, कहीं वीक नहीं बनोगे सर। That's the only doubt that was there in my mind. Otherwise, ओके सर। perfect. थैंक यू सर, थैंक यू सर। संजीव जी थैंक यू, थैंक यू सर। अरे वाह क्या बात है, पूरी फैमिली के साथ देखी है, थैंक यू सर। और मैं उन सबका भी धन्यवाद करना चाहूँगा जो यूके से भी हमारे साथ जुड़े हैं, मेघालय से जुड़े हैं, दूसरी स्टेट से जुड़े हैं। मैं सबका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। और अभी हमारे पास हैं 5 मिनट, अगर आपको क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। आपकी स्लाइड्स बहुत अच्छी थी, they were very good. थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। I just want to know by when can we receive them on the email? अमिताभ सर मोस्ट प्रोबेबली कल शाम तक आपको सबको मिल जाएगी। Okay, and I want to congratulate Amitabh also. You've been giving us very nice webinars. Oh, thank you, ma'am. सर एक अपने कंसल्टेशन चार्जेस के बारे में बता दो, अगर हमने करवाना हो, जैसे 3 बेडरूम फ्लैट हो तो उसके क्या चार्जेस हैं सर? सर चार्जेस की लंबी लिस्ट है, वो डिपेंड करता है कितना बड़ा एरिया है, कितनी दूर है। I think you can contact him personally. I will send the contact details. Yes. You will connect with him. Huh? So this is just an information session. It's not a commercial session. So just to Okay. Okay. Thank तो you. हेड डायरेक्शन के लिए पूछ रहे हैं, तो सर साउथ की तरफ हेड करके सोना चाहिए, ईस्ट की तरफ भी हेड करके सो सकते हैं आप। 2 दिशाएं हमारे पास हमेशा रहती हैं। तो मैं जनरली लोगों को बताता हूँ, जो बड़े बुजुर्ग हैं उनको साउथ की तरफ हेड करना चाहिए, और जो बच्चे हैं उनको ईस्ट की तरफ करना चाहिए। अगर ऑप्शन नहीं है तो दोनों भी यूज कर सकते हो। कार्तिक जी धन्यवाद आपका, थैंक यू सो मच। सर मैं विजिटिंग कार्ड आपको दे दूंगा, वीडियो चली जाएगी आपके पास, ये सारा चली जाएगी आपके पास। टॉयलेट है नॉर्थ डायरेक्शन के अंदर, अंजलि जी। तो मैं आपको मैम सजेस्ट करूंगा, क्योंकि नॉर्थ की टॉयलेट है, एक तो जो गुड अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास आ रही हैं उसको स्लो करती हैं, और पैसा लाने में, पैसा और करियर में नेगेटिव इम्पैक्ट डालती हैं। तो आप स्टड यूज़ करो, एक टॉयलेट के अंदर, एक टॉयलेट के बाहर। तो दो टॉयलेट यूज़ करोगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा आपका। और उसके बाद आप मेरे को 15 दिन के बाद, 1 महीने के बाद बता सकते हैं। थैंक यू ईशान चक्रवर्ती जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू अमिताभ जी, गुरु सिंह अमिताभ जी। And there is one question. Toilet is in southwest. What should be done? सर साउथ वेस्ट का टॉयलेट अगर होता है तो वहाँ पर आपके रिलेशनशिप और स्किल पे नेगेटिव इम्पैक्ट आता है। तो उसके लिए भी आप एक स्टड जो है टॉयलेट के अंदर, एक टॉयलेट के बाहर साउथ वेस्ट उनके अंदर डालेंगे तो वो प्रॉब्लम हमेशा के लिए ही खत्म हो जाएगी। आज तक मैंने बहुत स्टड यूज कर लिए हैं और इसमें बिल्कुल 100% रिजल्ट हैं सर। और इसके अलावा भी जो और दूसरी साउथ ईस्ट की भी अगर टॉयलेट है तो उसमें भी आप स्टड यूज करें, और उसके साथ कोई रेड बल्ब वगैरह फिर जलाने की जरूरत नहीं है। If toilet in northwest दीपक जी। जी सर। हेलो सर एक दीपक जी, मनी प्लांट के लिए कोई बेस्ट ऑप्शन क्या होगा, बेस्ट प्लेस क्या होता है अगर हम बात करें? सर मनी प्लांट सबसे बढ़िया होता है नॉर्थ डायरेक्शन, नॉर्थ में लगाओ। और नॉर्थ से भी अगर आप ज़्यादा चाहते हो तो नॉर्थ ईस्ट और सब ईस्ट तक जा सकते हो, इससे ज़्यादा नहीं। सबसे बेस्ट ऑप्शन नॉर्थ है।
और नॉर्थ वेस्ट की टॉयलेट है, तो सर नॉर्थ वेस्ट में अगर आपको फील हो रहा है कि आपका एम्प्लॉय के साथ और बैंक बैलेंस के साथ, बैकअप के साथ प्रॉब्लम है, तो आप इस स्टड्स को यूज़ करें सर। बुद्धा सर आप रख सकते हो, कितने भी लाफिंग बुद्धा रख सकते हो, और इसमें कोई बड़े हों, बैठे हों, खड़े हों, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, और कितने भी रखो कोई दिक्कत नहीं है। मेरा ये मानना है कि उनका फेस मेन एंट्री की तरफ ना करें। कुछ किताबों में लिखा है मेन एंट्री की तरफ लिखें, लेकिन मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है घर के अंदर उसका फेस करें। थैंक यू भरत, थैंक यू सो मच। दीप्ति, 3 बेसिक स्टेप्स टू फॉलो प्राइमरली व्हाट शुड, साफ सफाई रखें, और एसेंशियल ऑयल यूज़ करें, और सुबह डोर्स विंडोज खोल दीजिए। डज कीपिंग बुद्धा एंड एंट्री पे रख सकते हैं, होम एंट्रेंस मेक एनी डिफरेंस, एंट्री पे रख सकते हैं, लेकिन उसका फेस अंदर रखो सर। गुरु सिंह, कैन वी कीप रेड लाइट ग्लो इन द मेंटेनेंस? नो सर, नो, डायरेक्शन के बिना कभी भी रेड लाइट ऑन मत करो सर। ये अगर आपने नॉर्थ ईस्ट में या नॉर्थ में कहीं पर भी रेड लाइट ऑन कर दी तो एकदम से अपॉर्चुनिटीज और कैश फ्लो रुक जाएगा। कभी भी रेड लाइट के लिए मैं मना करता हूँ। सिर्फ अगर रेड लाइट जलानी है तो सिर्फ साउथ ईस्ट में, वो भी थोड़ा सा देख के। उसे कई बार क्या है, साउथ ईस्ट में भी रेड लाइट जलाने से गुस्सा बढ़ जाता है, तो इसलिए थोड़ा सा सोच समझ के ये करना है। और नॉर्थ से ईस्ट तक तो बिल्कुल भी रेड लाइट बिल्कुल ना जलाएं। सर एसेंशियल ऑयल डायरेक्शन के हिसाब से होते हैं। आप अगर नॉर्थ में अपॉर्चुनिटीज बढ़ानी है, कैश फ्लो बढ़ाना है, तो उसके लिए अलग अलग डायरेक्शन के हैं। रिलेशनशिप इंप्रूव करना है तो उसके लिए अलग है। हॉर्स शू सर, हॉर्स शू के लिए वो देखो उसमें जंग लग जाता है, मैं रिकमेंड नहीं करता, नहीं लगाने चाहिए। उसकी जगह आप नज़र बट्टू लगाएं और तुलसी का प्लांट लगाएं, भगवान का स्वास्थ्य बना दें तो ज़्यादा बढ़िया है। सर मैम, ये प्रॉपर्टी सेल के लिए हम कोशिश करते हैं, बिकी जाती है, लेकिन टाइम बाउंड नहीं होता है। अगर आप ये पूरा वास्तु बैलेंस कर देंगे तो वो एनर्जी का फ्लो बढ़ जाता है, तो प्रॉपर्टी बिकने में भी हेल्प करती है। तो उसके लिए ये एसेंशियल ऑयल बहुत काम करेगा आपको। हाउ शुड वी प्लेस इट विदाउट रस्ट? और सर विदाउट रस्ट आप प्लेस कर लो, ठीक है, और लेकिन ध्यान रखना अगर रस्ट है तो उसको आपको उतार देना चाहिए। थैंक यू सर। शिव सर थैंक यू। और मेरा कांटेक्ट नंबर दीपक जी, मेरे को मनी प्लांट। जी जी सर। जी सर। प्रशु यू और ऑपोजिट सर, ये यू शेप में लगता है हमेशा। प्रदीप सर थैंक यू सो मच। अमिताभ सर कोई क्वेश्चन आ रहा था, बीच में रह गया। हाँ, एक मिनट, कैन वी जस्ट if there is any question, I am not able to see. I think we are done with most of the questions. So Ravish sir, thank you very much. Thank you sir, Ravish sir. okay, how many doors should be there as in a house? Okay, doors. तो ये डिपेंड करता है कितना बड़ा घर है, और कुछ लोग ऑड इवन का ध्यान रखते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि ऑड इवन से बेटर है कि जो अच्छी एंट्री है उनको फॉलो करो। जितने रिक्वायर्ड डोर्स हैं उतने रखो, जरूर से ज़्यादा ना हो और कम भी ना हो, जिससे क्रॉस वेंटिलेशन अच्छा हो। ऑड इवन का मैं आज तक से पूछो तो मैंने उसको नहीं देखा है। मैं तो ये देखता हूँ कि कितनी रिक्वायरमेंट है, और आर्किटेक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा डोर बनाओगे तो स्पेस वेस्ट हो जाती है। तो इसलिए जितने रिक्वायर्ड है उतने रखिए प्लीज़। दीप्ति जी थैंक यू। Sir, a good quality door as on day it costs nearly $1 lakh each. So it depends how much money you can spend. या ये आर्किटेक्ट हैं हमारे, इसलिए ये सही टाइम पे सही एडवाइस दे देते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू अमित जी। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू एवरीवन। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, आप सबने कीमती टाइम निकाला, और ये शेयर स्लाइड्स भी आपको सबको शेयर हो जाएंगी। और अमिताभ जी से मैं रिक्वेस्ट करूँगा, अमिताभ जी प्लीज़ ये आप इनको शेयर कर देंगे कल तक। और ओवर टू अमिताभ जी। Yeah, so thank you so much everyone for joining us on a busy afternoon, and thank you Deepak ji for being with us and giving a wonderful explanation to what Vastu is all about, and some of the tips were really useful,
and I hope you will find them useful in your day-to-day working life also, and later on also in the life, especially those who are in construction or otherwise field, even those who stay at home also. Some of the tips are very simple and very practical and doable. And what we would do is we will share with you the recording of all the sessions, and I'm sure give us a couple of days, and we will share it along with the contact details of Deepak ji. So if you have any further questions, you can connect with Deepak ji directly, and also go through the recording once again to know more about it. And I'm really sorry, at some point in time the audio quality was really bad and it didn't happen. We did have some technical glitches, but I hope we made up for all this in the question answer session. And if there is still, we still have 1 or 2 minutes. If someone still has a question, we'll be glad to answer. Yeah, sure. दीपक जी, मनी प्लांट की लोकेशन क्या होनी चाहिए घर में? सर मनी प्लांट आप नॉर्थ में लगाएं, चाहे वो कमरा है चाहे बालकनी है, जहाँ पर भी बेस्ट डायरेक्शन जो है मनी प्लांट की नॉर्थ है। तो आप नॉर्मल मनी प्लांट भी लगा सकते हैं और गोल्डन मनी प्लांट जैसा कि मैंने बोला है कि वो लगाएं, और ये ध्यान रखने कि उसका जो गमला है वो बिल्कुल भी रेड कलर का ना हो। ठीक है सर। थैंक यू सर, थैंक यू। Okay, thank you so much for all for being with us. Just one last question. I think somebody is asking, what is the best color arrangement? I'm not sure. There can be anything called best color arrangement? The best color मैं बता देता हूँ, white and cream color are the best colors. अगर आपको पूरा पता नहीं है कि कौन सी दिशा में कौन सा कलर करना चाहिए, तो नॉर्मल जो वे में है व्हाइट, ऑफ व्हाइट, क्रीम आप कहीं पर भी यूज करिए, ये कभी भी आपको तंग नहीं करेंगे। Thank you so much. So we will close it off here, and thank you so much. Thank you, Amitabh ji. Thank you all of you. Thank you everyone. Thank you so much. Thank you.